بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماریہ چودھری اور آج کی بات کریں گے بچو عبدالقادر دیوان صاحب سے, جو کہ فشری کے ایک بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے اسی بات پر. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ فشری میں کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سر یہ بتائیے گا کہ ایکسپورٹ میں فشری کے سیکٹر کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو اس وقت جو خاص طور پہ ہماری فشری انڈسٹری کا جو ایکسپورٹ کا جو مسئلہ ہے, جو گورنمنٹ نے آپ کو پتہ ہے بجلی کا ریٹ اتنا زیادہ کر دیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایکچوئل پہلے ہماری جو بجلی کی بل آ رہا تھا, اگر ہم فل فلیش کام کریں تو ہمارا آ رہا تھا 80 لاکھ 1 کروڑ. اس وقت ہماری بل آ رہا ہے ڈبل ہو گیا, اور ڈبل ہونے کی وجہ سے ہم جو اسپیڈ میں ہم ایکسپورٹ کر کے ہم یورپ کنٹری ایشیا میں جو مال ایکسپورٹ کرتا تھا, اس وجہ سے ہم فی الحال ہم نہیں کر پا رہا ہوں, کیونکہ میں کوسٹ برابر نہیں کر پا رہا ہوں. ہماری کوسٹ بہت ہی زیادہ ہے دوسری ملک سے. اور رہ گیا یہاں ہماری جتنی بھی پتہ ہے آپ کو ماہی گیر ہے, ماہی گیر کی جو بزنس ہے ہماری ریلیٹڈ ہے ہماری فش سے. ظاہر بات ہے اگر ماہی گیر ہمیں فش لا کے دیں گے تو ہم اس کو پیک کر کے اس کو پیکنگ کر کے ایکسپورٹ کریں گے تو باہر کی ڈالر ہم پاکستان میں لا کے دیں گے. اس کا مین ایشو ہے اس وقت جو ماہی گیر ہماری فشریز جو ماہی گیر ہے, ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کتنا لاکھوں ماہی گیر ہے, جو ہم اپنی کراچی فشر سے ہم کتنی ارب روپیہ سالانہ, جو میرے خیال 50 سے 62-60 ارب روپیہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. اس وقت خاص طور پہ ڈیزل کی وجہ سے, ڈیزل بھی آپ دیکھیے ڈیزل کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پہلے کی طرح 100-150 روپے تھے, پھر 180 ہو گیا, پھر 200 ہو گیا, 200-220 ہو گیا, 250 ہو گیا, 280 ہو گیا, اب 300 ہو گیا, اب 300 اپ ہو گیا, 330 اس وقت چل رہا ہے. اب سنی ہوئی بات ہے کہ ڈیزل کے ریٹ اور بڑھیں گے. تو آپ بتائیں ایک لانچ باہر جانے کے لیے ان کو 70 سے 80 لاکھ روپے ان کے صرف کوسٹ آتی ہے. 70 سے 80 لاکھ روپے, اس میں ڈیزل کی پیسہ صرف 50 سے 60 لاکھ روپیہ, اور پہلے ڈیزل آتا تھا ان کا 30 لاکھ 25 لاکھ اس طرح. تو اس وجہ سے خاص طور پہ جو پاکستان کا سی فوڈ میں جو آپ کی جو ایکسپورٹ میں جو مشکلات آ رہا ہے, یہ اس لیے آ رہا ہے خاص طور پہ ایک بجلی کی ریٹ میں بڑھانے کی وجہ سے, اور جو یہ ڈیزل کی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے. اگر یہی صورتحال رہے گا تو میں سمجھوں نہ ہماری ماہی گیر کیچنگ کر پائے گا, نہ وہ مچھلی پکڑ کے ہمیں لا دے سکتا ہے, نہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے. تو لازم حکومت کو چاہیے جلد سے جلد اس کی کوئی فیصلہ کرے. اگر اس طرح یہ حالات رہے گا تو یہ ہم جتنے ایکسپورٹر ہیں فشری میں, ماشاءاللہ جب کہا آپ کو 60 سے ارب روپیہ سالانہ ہم ایکسپورٹ کرتا ہے. اوورآل جتنی فیکٹری ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں, ہم بھی ماشاءاللہ 7-8 ارب روپیہ سالانہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بالکل زیرو میں آئے گا. تو حکومت پاکستان سے میرا اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس کو دیکھا جائے, اس مسئلہ کو حل کیا جائے. اور خاص طور پہ جس صورتحال ابھی نظر آ رہا ہے, جو صورتحال ہمیں نظر آ رہا ہے, اسی صورتحال رہے گا تو شاید ہم ایکسپورٹ آگے نہیں کر پائیں گے. ہمیں فیکٹری بند کر کے گھر جانا پڑے گا, ہمیں لیبر کو چھٹی دینا پڑے گا. اس میں دیکھیں ایک فیکٹری میں 500 ورکر ہے, 500 گھر کے لوگ, کتنے لوگ ریلیٹڈ ہے. اب بتائیں ہم کس کو دیکھیں. جب ہم کوسٹ کرنے جائیں بالکل ہم کوسٹ پورا ہی نہیں کر پا رہا ہوں, ہمیں ڈیلی لاس کی سبب کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اور ڈالر بھی آپ دیکھو, کبھی ڈالر ہمارا ملک پہ کہاں چلے جاتا ہے, کبھی کہاں لے آتا ہے. یہ خاص طور پہ جو ایکسپورٹر کے لیے, تمام ملک کے ایکسپورٹر کے لیے, جو ٹیکسٹائل ہو, چاہے سی فوڈ ہو, چاہے گارمنٹس ہو, کوئی بھی, ان کو بھی اثر پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر بالکل, میں اسی بات پہ آئی تھی کہ پہلے صرف پیٹرول کی پرائسز بڑھتی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی بالکل بند ہو چکی ہے. اس کے علاوہ باقی سیکٹرز پہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن اب بجلی کے پرائسز بھی اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, اور سننے میں آ رہا ہے کہ فشری میں جو ایکسپورٹ کے آرڈرز تھے وہ کافی کم ہو گئے ہیں. تو یہ کیا وجوہات ہے, کیا پاکستان اس خطے میں انڈیا اور بنگلہ دیش سے بہت پیچھے چلا گیا ہے اس معاملے؟ بالکل. دیکھیں اگر ایسے صورتحال رہے گا, دیکھیں انڈیا دیکھیں وہ بھی ایکسپورٹر ہے, ان کو ایکسپورٹر کو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹی دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ایکسپورٹر ہے ڈالر منگا کے دیتا ہے, ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹرا پیسہ بھی ملتا ہے, ریبیٹ ملتا ہے, وہ ملتا ہے. ہماری تو کچھ بھی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے. آج سے 2018 میں اعلان کیا تھا ہماری سی فوڈ ایکسپورٹروں کو کہ 4% بدون ٹیکس دیا جائے, وہ بھی گورنمنٹ نے آج تک ہمیں دیا نہیں. جو مطلب جو ایکسپورٹ انکریز کرے گا اس کے اگینسٹ میں 4%
रिबेट दिया जाएगा। वो भी हमने माशाल्लाह 2018 में 19 में मैंने डबल करके खासतौर पर स्टेट बैंक को हमने वो जमा किया, मगर जब भी हम मांगने जाए तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। आज भी माशाल्लाह आपको पता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन हो रहा है, वो अभी गया हुआ था, इस बारी में डिस्कस हो रहा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल रहेगा बिल्कुल बांग्लादेश से इंडिया से हम बिल्कुल पीछे आ जाएंगे। खासतौर पे पाकिस्तान का रीढ़ की हड्डी एक्सपोर्टर है। अगर हमारी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट ही अगर आगे नहीं है और उसको फैसिलिटी ना हो और दिल से काम नहीं कर पाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेंगे। डॉलर आएंगे तो मुल्क तरक्की करेंगे। और हर मुल्क का देखिए, जहां डॉलर आपका तेल इंक्रीज होता है तो तेल के हिसाब से डॉलर का रेट होती है हमेशा। हम देख रहे हैं ना, देख के रहे, हमारी भी उम्र 61 हो गया, हम भी देखते रहे आज तक। जो अगर तेल आपका 300 है तो डॉलर भी लगभग उसी में चल रहा है। तो ये मुल्क में कोई कानून की कोई समझ ही नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत और दुनिया क्या कर रहा है और आवाम क्या बताऊं। माहीगीर जो हैं उनका काफी ज्यादा बुरा हाल है, वो सारा दिन जो है वो काम करते हैं लेकिन उनको उस हिसाब से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। देखिए माहीगीर को आपको पता है समुद्र में मछली पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। वो 25-30 दिन की रास्ता में जाता है, मौत को कबूल करके जाना पड़ता है। जब समुद्र में जाना है उसकी समुद्र से मछली पकड़ के हमें ला के देता है। और यहाँ माहीगीर 2 तरफ का टैक्स पे करता है। देखिए एक सोशल गवर्नमेंट को भी यहाँ 5% लाख में 5 लाख रुपया वो गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है इसमें। और बाकी जो हम उसकी फिश से एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करने का बाद हम जो डॉलर मंगा के पाकिस्तान को देते, तो माहीगीर से हमारा दोनों तरफ का बेनिफिट है। सही बात है, अगर माहीगीर नहीं होगा तो कोई कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त माहीगीर अगर इस सूरत हाल रहा तो ये लांचे सारा खड़ा हो जाएगा और इधर 5 से 10 लाख जो माहीगीर है रोजी रोजगार कर रहा है वो भी घर बैठेगा। जाहिर बात है, वो समुद्र में जाके कोस्ट, अभी देखिए बर्फ का रेट बढ़ा दिया, पानी का रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया, तमाम चीज बढ़ा दिया। मतलब किस लिए? डॉलर की वजह से। बिल्कुल डॉलर की वजह से सारी चीज हमें महंगा पड़ रहा है, डबल से डबल हो गया। और हमारी मछली का रेट वही है। और खासतौर पर इस वक्त और एक्सपोर्ट और खराब होते इसलिए जा रहा है कि पहले जितनी ऑर्डर होता था हमें बाहर मुल्क की तरफ से, वो इतनी फुल फ्लैश ऑर्डर हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए उनका भी मसला है। जैसे आपकी बाहर से उनका अमेरिका से, जापान से, यूके से, कनाडा से, तमाम मुल्क से जो ऑर्डर पहले मिलता था ज्यादा करके, वहां भी इतनी खपत नहीं है। फिलहाल आस्ते आस्ते वो कम होते जा रहा है। इसलिए हमारी मछली का वैल्यू भी कम हो रहा है, क्यों जब आगे खपत नहीं तो हमसे क्या मंगाएंगे। तो मछली का रेट भी नीचे जा रहा है। तो इस वजह से हुकूमत को, पाकिस्तान को मैं दोबारा अपील करूंगा, जो इस वक्त जो हमारे एक्सपोर्ट की सूरत हाल है ना, अगर ये हालात रहा तो हम कह नहीं सकते हैं। और क्या बोलूं, क्या ये एक्सपोर्ट कहाँ जाएगा और ये पाकिस्तान कहाँ जाएंगे। हमको यही पता है क्या, हर गवर्नमेंट को चाहिए एक्सपोर्टर को सहूलत दे, फैसिलिटी दे, वो मुल्क के लिए काम करे और डॉलर मंगा के मुल्क को दे और उससे मुल्क की बेहतरी हो। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान में फिश फार्मिंग पे भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसे हम देखते हैं कि दूसरे ममालिक में फिश फार्मिंग की जा रही होती है, लेकिन पाकिस्तान में उस हिसाब से कोई काम भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान हर लेवल पे नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं? देखिए हमारी जो, अगर पाकिस्तान में जो श्रिम्स, हर मुल्क में तो श्रिम्स आपकी बादामी श्रिम्स होता है, हमारी पाकिस्तान में नहीं है। मेरे ख्याल लिटन बिट है, थोड़ा बहुत है, मगर कभी होता है वो तो मेरे ख्याल लोकली इंसान खा जाता है। नहीं, हमारी मुल्क में ऐसा नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत है मेरे ख्याल, रोहू, कतला वगैरह, वो इतना वो इंटरेस्ट वाला चीजें नहीं है, वो कीमती वाला चीजें नहीं है, वो हो रहा है। बिल्कुल हमारी पाकिस्तान में ये भी एलजी कल्चर का जो मसला है ना, ये भी नहीं है, ये भी कम है मुल्क से। तो सारी बातें होगा तो हमारी एक्सपोर्ट डबल होगा ना, वो भी नहीं है हमारे। तो सर बेसिक तो हमें अपने फाउंडेशन पे काम करने की जरूरत है ना, क्योंकि हमारी फाउंडेशन ही वीक है। हमारे पास फिश फार्मिंग का कोई तरीकेकार नहीं है, हमने नई कोई रिसर्चेज नहीं की हुई, हम प्रॉपर्ली अपने जो चीज़ें हैं हमारे पास हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो आगे तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ें कम पड़ेंगी। देखो फिश, अगर हम बादामी फिश करें तो उसके लिए जारी बात है गवर्नमेंट को फुल फ्लैश एक्सपोर्टर को सपोर्ट देना चाहिए, उनसे मीटिंग करना चाहिए, भाई हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाए और हमारी फिश फार्म अगर हम करें तो उसको किस तरह इंक्रीज किया जाए। वहां से अगर हमारी पाकिस्तान में नहीं है तो जो बाहर मुल्क कर रहा है, जैसे बांग्लादेश कर रहा है,
चाइना कर रहा है, बैंकॉक कर रहा है, इंडिया कर रहा है, वहां से कुछ लोग लिया है, लाके हमें ऐसा जगह दे गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे फैसिलिटी दे कि हमारी जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको ऐड करें। तो मेरा ख्याल अगर गवर्नमेंट चाहे, मगर पाकिस्तान का गवर्नमेंट ये नहीं है, किसी को सपोर्ट देने के लिए नहीं है, वो नहीं सोचता है कि पाकिस्तान का बेहतरी कैसे होंगे। हमारी हुकूमत तो आप देख रहे हैं, हुकूमत कहीं आ रहा है कहीं जा रहा है, और क्या हालात है पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज से पाकिस्तान की सूरत साल। सर इस वक्त पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट आई, उन्होंने काफ़ी सब्ज़ बाग दिखाए हैं। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने काफ़ी सब्ज़ बाग दिखाए हैं कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर होगी, एक्सपोर्ट पे भी काम किया जाएगा। उसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा, अपना सारा कुछ करेंगे हम। आपको क्या लगता है, क्या ये वादे वफा हैं? देखिए, ऐसे तो वादा हर किसी ने किया है, वादा किसी ने निभाया नहीं है। अल्लाह करे हमारी आर्मी चीफ अगर इसने वादा किया है, हाफिज मनीर साहब ने, ठीक है ना, अगर उसने वादा किया है, अगर वो कर सके तो वेलकम, ठीक है ना, हम सलाम पेश करते हैं उनको भी कि अगर करके दिखा सकता है तो अच्छी बात है। आज तक तो पाकिस्तान का जिसने भी वादा किया, बड़े बड़े लीडर आया, किसी ने वादा किया पूरा तो किसी ने नहीं किया, सबको मालूम। सर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, और जिसकी वजह से हमारे जो सारे सेक्टर्स हैं, हमारी मईशत है, वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। अब इंडिया को देखें या बांग्लादेश को देखें तो वो उन्होंने अपने सियासी इस्तेकाम को मेंटेन किया हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि सियासी इस्तेकाम इन सारे मसाइल की जड़ है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, चाहे हुकूमत किसी का भी आए, कोई भी हुकूमत में आए, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे एमएम हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आता है उसको 5 साल हुकूमत करने दिया जाए, सही, तो शायद मुल्क की बेहतरी हो सकता है। पाकिस्तान में ये चल रहा है, कोई अगर हुकूमत में आ गया तो 10 पार्टी मिलके, 2 पार्टी मिलके एक टांगे खींच के उसको हुकूमत चलाने देता ही नहीं है ना। वो पाकिस्तान के लिए सोचेंगे कि अपनी आपस में झगड़ा करते रहेंगे। तो जब तक, और पाकिस्तान का आप देखिए 5 साल के अंदर कितनी प्रेसिडेंट चेंज हो रहा है, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। अब बांग्लादेश को ले ले, इंडिया को ले ले, थाईलैंड को ले ले, अब जापान को ले ले, मलेशिया को ले ले, देखिए वहां 5 साल हुकूमत करती है, 5 साल की बाद फिर दोबारा फैसला करता है कौन आएगा और कौन बेहतर करेंगे। जो बेहतर करेगा वो आवाम उसको सपोर्ट करेगा, आवाम उसको वोट देंगे। जाहिर बात है, हमारी जो पाकिस्तान का सियासत है, ये तो बिल्कुल ही जो ये आए दिन हुकूमत चेंज होते जा रहा है, आए दिन नया नया प्रेसिडेंट बन रहा है, आए दिन वो साल में मेरा ख्याल 5 साल में 2 बार बन चुका है। तो बताइए कैसे काम करेंगे। तो एक को काम कोई भी आए, मैं समझूं 5 साल उसको काम करने दिया जाए तो शायद मुल्क के लिए बेहतरी है। सर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अरसे में पाकिस्तान की सियासत स्टेबल हो जाएगी? देखिए, अल्लाह, ये अभी पाकिस्तान को अल्लाह ही बचा सकता है। हमारी तो नज़र में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान कैसे आगे जाएगा, ठीक है ना। मगर अगर अल्लाह तो सबके साथ है, मगर हमारी हुकूमत, सियासतदान और तमाम अदारा अगर एक होके अगर एक प्लेटफॉर्म होके पाकिस्तान के लिए सोचे, खास तौर पे अपनी मफाद के लिए नहीं। यहाँ तो आपको पता है हर कोई अपना जेब भरने की तैयारी रहता है। चाहे कोई प्रेसिडेंट बनता है, वो अपना पहले तैयारी शुरू करता है, अपना घर कैसे भरूं। वो आवाम को इस वक्त पिस रहा है कौन है? गरीब। आप देखें जिसकी घर पे अभी बिजली, आप क्या बताऊं, मेरी घर पे भी 2, 4, 10 के किराएदार होती है। वो गरीब बिजली का बिल भरेगा, बच्चों को खाना खिलाएगा, बच्चों को स्कूल का फीस देगा, क्या एक वो भी एक इनका खुशी होती है कोई बाहर जाके खाना खाना है। इस वक्त पाकिस्तान की गरीब का जो हालात है ना, कि अल्लाह जाने के आगे क्या होगा। आप देखें खुदकुशी भी कर रहे हैं लोग, बिल्कुल कर रहे हैं, खुदकुशी भी कर रहे हैं। जाहिर बात है, अब बच्चों को 2 वक्त तक खाना नहीं खिला पाएंगे तो माँ बाप क्या करेगा। आखिर यही रास्ता है। तो अल्लाह ना करे, जैसे पहले भी श्रीलंका का हालात देखे हो गया था, आज देखे श्रीलंका की भी पैसा हमसे ऊपर है, हम उनसे नीचे है। तो मैं चाहता हूँ हर मुल्क का सबको बैठ के एक प्लेटफॉर्म में बैठ के मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान कैसे बेहतरी में आएंगे, ये चाहे हमारा आर्मी को भी बैठना चाहिए, हमारा जितना सियासी लोग हैं उनको भी बैठाना चाहिए, और जो माशाल्लाह काबिल है इस पाकिस्तान को चलाने के लिए उनके साथ भी बैठ के मशवरा करना चाहिए। सिर्फ एक ही लफ्ज़ हो और एक ही बात हो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, तो ये बेहतर होगा। आप देखें
बांग्लादेश और पाकिस्तान को आप उठा ले, पहले हम लोग कोई दोस्त यार को अगर कोई पैसा बेचता था तो यहाँ से 1 रुपये वहां में 2 रुपया 2.5 रुपया मिलता था। आज सूरत हाल देखे, यहाँ का 3 रुपया वहां का 1 रुपया। बिल्कुल। हम कहाँ पहुंच गया? हमारी पैसा का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। और आपको बता रहा हूँ हमारी यहाँ माशाल्लाह यहाँ हम लोग कम से कम 300-400 कंपनी है इस फिश इंडस्ट्री में। हम लोग आए दिन अब यही बातें कर रहे हूँ यार, कैसे बिजली का बिल भरेंगे, कैसे डीजल का बिल भरेंगे, और किस तरह हम लोग बड़ा एक्सपोर्ट करेंगे जो कॉस्ट ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सूरत हाल बहुत ही खराब है। बस अल्लाह हमें बेहतर करे और इस मुल्क का हुकूमत को, जिसको भी इस मुल्क के लिए दर्द है, देखो जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान बना के दिया है सब मुसलमानों को, और इस मुल्क बना ही कलमा की बुनियाद में, आज उस जो हालात हमें देख गया, हम पाकिस्तान के सियासतदान उसमें नहीं सोच रहे। अगर उसके लिए सोचे तो हम शायद मुल्क को तरक्की में ले जाए। इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस वक्त ये वेंटिलेटर पे है। बहुत मुश्किल हालात हैं क्योंकि डीज़ल जो है वो बहुत महंगा हो गया, और ट्रॉलर्स क्योंकि चलते डीज़ल पे हैं, तो अब इतने रेट्स जो हैं मछली या झींगे के बढ़े नहीं जो कि बढ़ने चाहिए थे। खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारी तो दरख्वास्त और रिक्वेस्ट ये होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जैसा कि नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, ये जो सब्सिडाइज करते हैं डीज़ल या टैक्स जो है वो नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फिल फॉर ये करना चाहिए कि ये टैक्स ना लें ताकि डीज़ल कम कीमत में मिले और इंडस्ट्री में कुछ जान आए। इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग 500 मिलियन की हैं, जबकि पोटेंशियल जो है इससे कहीं गुना ज़्यादा है। मैं बिल्कुल सेफली ये कह सकता हूँ अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट रहे तो ये इंडस्ट्री 2.5-3 बिलियन 2 साल में कर सकती है, 2.5-3 बिलियन पे आ सकती है 2 साल में। तो दरख्वास्त यही है कि सबसे पहले डीज़ल जो है उस पर जो टैक्स है वो फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए वो ख़त्म किया जाए। बात ये है कि हकीकत में इस्तेमाल तो ईरानियन डीज़ल भी हो रहा है, लेकिन लोकल डीज़ल भी इस्तेमाल होता है। ईरान का डीज़ल वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने बलूचिस्तान ट्रॉलर्स भेजते हैं और कैच नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पे 15 दिन के अंदाजे से गए और उतना कैच नहीं है कि ट्रिप वायबल हो, तो डीज़ल की कमी जो है वहाँ से पूरी कर ली जाती थी। अब यकीनन ये सुनने में आया है कि डीज़ल वहाँ से नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो बहुत उसमें तकलीफ़ है, और बहुत क्योंकि आपको पता है तकलीफ़ होती है तो रेट बढ़ जाता है। और अब जो मैं सुन रहा हूँ वो तकरीबन रेट पाकिस्तान के लगभग है। लगभग इस बुनियाद पे है कि ईरानियन डीज़ल जो है वो है लो स्पीड डीज़ल। अगर पाकिस्तानी डीज़ल भरवाते हैं, अगर 1 लीटर में मिसाल के तौर पे 10 किलोमीटर करता है, तो ईरानियन डीज़ल जो है वो 1 मिनट में 1 लीटर में 8 किलोमीटर करता है। तो वो फ़र्क तो है ही। बाकी ईरानियन डीज़ल जो है क्योंकि उसमें कमी हो गई है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे डीज़ल देती है और सब्सिडाइज करती है तो कोई ईरान का डीज़ल नहीं भराएगा, उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी कई ट्रॉलर्स में कम होती है डीज़ल ले जाने की, उतने दिन समुंदर में सस्टेन करने की, तो इस बुनियाद पे जब वो डीज़ल ख़त्म हो जाता है और कैच इतना नहीं होता कि वायबल ट्रिप बने, तो ईरानियन डीज़ल इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि वो उस वक़्त एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं जब compete करें वो अपनी नेबरिंग कंट्री से। इंडिया भी जो है वो झींगा मछली एक्सपोर्ट करता है, ईरान भी एक्सपोर्ट करता है, ओमान भी एक्सपोर्ट करता है, और ये ममालिक जो हैं सब्सिडाइज डीज़ल दे रहे हैं। हम सब्सिडी मांग ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो टैक्स ना ले, तो वो ये
WTO میں بھی ایک گزارش پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکس نہیں لے رہے ان سے، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ اس بنیاد پہ پیسے دے رہی ہیں، ڈیزل دے رہی ہیں جس پہ ٹیکس نہیں ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے یا گورنمنٹ سمجھ نہیں رہی کہ اس کو یہ بآسانی کر سکتے ہیں. میں آپ کو رینج بتا دیتا ہوں، 25 لاکھ سے لے کے 60-70 لاکھ روپے تک کا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرالر کے سائز پہ، اس کی ڈیزل کی کیپیسٹی کتنی ہے. جب وہ واپس آتا ہے، اگر مثال کے طور پہ وہ 50 لاکھ کا سامان لوڈ کر کے گیا ہے سمندر میں رہنے کے لیے، اور وہ اب واپس آیا ہے، وہ 60 لاکھ کا بھی سامان لایا ہے، تو بھی اس میں یہ سمجھیے کہ جیسے وہ لینڈنگ ہوتی ہے تو ٹوٹل لینڈنگ پہ 6.25% ٹیکس ہے. وہ تو ٹیکس کٹ جاتا ہے، ان کو تو مل جاتا ہے. ٹیکس کٹنے کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے، جو ایڈوانس لیا ہوتا ہے ناخدا نے اور کرو نے، جو کہ 15 سے لے کے 30 تک کرو ہوتے ہیں، جو ایڈوانس لیا ہوتا ہے وہ ایڈوانس بھی نہیں کٹ پاتا ہے، تو نقصان میں آ جاتا ہے. کیونکہ ریپیئر مینٹیننس جو ہے وہ مالک کی ہے، جو ریپیئر یا مینٹیننس کرنی ہوگی وہ مالک ریپیئر مینٹیننس کرتا ہے. اور اس بنیاد پہ یہ وائبل اس وقت تو بالکل ہی نہیں ہے مچھلی پکڑنا اور اس کو بیچنا. تو امیڈیٹلی ہم ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ کریں گے کہ اس پہ نظر ڈالی جائے اور وار فوٹنگ پہ اس کو جو ہے وہ صحیح سمت میں لایا جائے. وجہ یہ ہے کہ جب شروع میں یہ فشری بنی تھی اور یہ جیٹی بنی تھی تو یہ تقریباً 450 لانچوں کے لیے بنی تھی. اب اس وقت ہمارے یہاں پر جو آپریشنل لانچیں ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں. تو ایٹ اے ٹائم 2000 کے قریب لانچیں اندر کھڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کنجیشن زیادہ ہے، اور لانچوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں بہت تکالیف ہے، بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پر جو ہماری فلوٹنگ جیٹی بنی ہوئی تھی، پنٹون بنے ہوئے ہیں، وہ سارے تقریباً ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور اس کے مینٹیننس کا کوئی بھی کام پچھلے جب سے یہ بنے ہیں، یہ مارکیٹ بنی ہے، یہ پنٹون بنے ہیں، تقریباً 27-28 سال ہو گئے، اس کے مینٹیننس کا کام پھر نہیں ہوا. اور جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی جا رہی ہیں وہ ڈوب بھی گئی ہیں کئی، اور مطلب بڑی تکلیف کا سامنا ہے. لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں. اگر آپ بیک سائڈ پہ جائیں اور آپ اس کی مووی بنائیں، فلم بنائیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر کام کرتے ہوں گے، برف کیسے لوڈ کرتے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لانچیں کھڑی ہونے کے لیے جو لانچیں آپریشنل نہیں ہیں، مثال کے طور پر اس میں کوئی کام ہوتا ہے، اس لانچوں کو پارکنگ کے لیے کوئی الگ سے جیٹی نہیں ہے، تو پارکنگ بھی یہیں پر ہو رہی ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ بھی یہیں پر ہو رہے ہیں، مچھلی کی ان لوڈنگ بھی یہیں پر ہوتی ہے. تو جب یہ سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں، 3 کام ایک جگہ پر ہو رہے ہیں، تو اس سے لانچوں کا ٹوٹنے کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. لانچوں ٹکراتی ہیں لانچیں، اور ٹائم کافی ویسٹ ہوتا ہے مال کو ان لوڈ کرنے میں بھی، اور برف لوڈ کرنے میں، جال لوڈ کرنے میں، راشن وغیرہ لے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے. تو ہماری گزارش ہے بالا حکام سے کہ اس پر توجہ دیں، جو کہ ہم بارہا کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے پاکستان میں باقی اداروں کا برا حال ہے، یہ ادارہ بھی ایسے ہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ فشریز کی صنعت سے 15 لاکھ خاندان وابستہ ہیں، اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی سہولت نہیں ہے. ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، راشن مہنگا ہو رہا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے، پرائس کنٹرول کا کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے یہاں پر، اور صفائی کا بھی فقدان ہے، جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. ادارے موجود ہیں لیکن اداروں کی جو ذمہ داری ہیں وہ نہیں نبھا رہے ہیں. یہاں پر 4 ادارے ہیں. ایک فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی جو کہ ماہی گیروں کے اپنے دیے ہوئے
टैक्स से वो चलता है, वो मार्केट को रन करते हैं। दूसरा इदारा है कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी, वो यहाँ पर मार्केट के मेंटेनेंस के हवाले से और जो पंटून बने हुए हैं उनके मेंटेनेंस के हवाले से उनका काम है, लेकिन वो भी प्रॉपर तौर पर नहीं हो रहा है। तीसरा इदारा है MFD, MFD में भी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, और वो सिर्फ अपना एक्सपोर्ट के हवाले से लाइसेंस जारी करते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं देते हैं, मार्केट की तरफ जाते ही नहीं है बिल्कुल कि मार्केट का क्या हाल है, माहिरों को कितने मुश्किलात का सामना है, कोई मतलब है उनको कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे जैसे दूसरे इदारों में लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इसको तवज्जो दे। जिस सनद से 80-90 अरब रुपया, मैं रुपए में इसलिए कहता हूँ कि आम आदमी भी, हमारे जो लोग हैं माहिर, उनको भी पता चले कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है। अब एक्सपोर्ट 80 से 90 अरब रुपए तक एक्सपोर्ट होता है इस इदारे से, 15 लाख खानदान का रोजगार इससे वाबस्ता है, लेकिन इसको बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है। ये ऐसा है कि लांचों की तादाद जैसे ज्यादा हो गई ना, तो मछली के लिए उतारने के लिए जगह कम है। जगह यहाँ पर है ज्यादा, लेकिन उसको कोई इस तरीके से मतलब मेंटेन नहीं करते हैं कि इसको हम यूटिलाइज कर सकें। वो इसमें बड़ी कमजोरी है, कोई तवज्जो नहीं है। इदारे एक तरफ खामोश बैठे हुए हैं, ऑफिस में आते हैं और चले जाते हैं, और प्लाट जो है ना, जो लोग काम करने वाले हैं उनको प्लाट नहीं दिया जाता है, और हम ये सुनते हैं कि प्लॉट बिक रहे हैं। अब खरीदने वाला और बेचने वाला अगर अंडर टेबल या कहीं बैठकर वो पैसे लेते हैं और देते हैं, उसका तो पता नहीं चलता है, लेकिन आवाज यही आती है कि ये प्लाट बिक गया है। और जो असल काम करने वाले लोग हैं, जो मार्केट के सीनियर लोग हैं, उनको वो प्लाट लेने में बड़ी दुश्वारी होती है। वो कब किस जगह माल उतार रहे होते हैं, परमानेंट उसको जगह नहीं मिलती है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि हर ऑक्शनर को परमानेंट बेस पर वो जगह अलॉट की जाए, और उन लोगों को अलॉट की जाए कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो असल ऑक्शनर हैं। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं फिशरी मार्केट में और दिखाते हैं आपको वहाँ की सूरत हाल। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं काशान से, जो कि फिशरी के बहुत बड़े व्यापारी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन मसाइल का शिकार होना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? वालेकुम सलाम। अभी तक तो फ़िलहाल ऐसी कोई मुश्किलात नहीं है, डीज़ल पेट्रोल की वजह से खाली मसले हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि डॉलर वगैरह नीचे आ रहा है तो मार्केट के रेट भी नीचे आ रहे हैं, तो डीज़ल ऊपर हो रहा है तो लांचों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब शिकार आपके सामने में, ये सीज़न का टाइम है, माल नहीं है इस टाइम, डीज़ल बहुत महंगा है, इस वजह से माल नहीं आ रहा है, क्योंकि शिकार नहीं कर पा रही। लांचें आपके सामने सारी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, बाकी तो कोई मसला मसाइल नहीं है। बाकी कोई मसला मसाइल नहीं, क्योंकि ये एक ही इतना बड़ा मसला है कि ये सब पे भारी है। जी जी बिल्कुल, ये बस हमारी गवर्नमेंट को अल्लाह हिदायत दे। क्या बोल, आप क्या समझते हैं कि इन सारे मसाइल का हल क्या है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अगर यही चलता रहा मजीद तो ये फिशरी को ताला लग जाएगा। काफ़ी बड़ी लांच है, करोड़ों की मालियत में ये खड़ी हो रही है सारी लांचें। इतना डीजल अभी मजीद सुनने में आ रहा, 30 रुपये महंगा का, 30 रुपये महंगा होता है, लांचों में 15-15 लाख रुपए का खर्चे में फ़र्क आ जाता है। अच्छा काशान, ये बताइएगा कि यहाँ की टाइमिंग्स क्या हैं, कितने बजे यहाँ पर ख़रीदार आना शुरू? बस ये यहाँ पर मार्केट का हिसाब है। अभी ये दोपहर को 3 बजे से लेके मगरिब तक की मार्केट है, इसके बाद मगरिब के बाद मार्केट लगती है रात को 9-10 बजे तक है। और यहाँ पर तकरीबन ये मार्केट डोरी की मार्केट है, बिल्कुल फ्रेश मार्केट है। जो 6 घंटे 8 घंटे में जो माल पकड़ते हैं ये वो माल है, जैसा किंग फिश वगैरह हो गए, जहाँ मखसूस आइटम की ये मार्केट है, जहाँ बिल्कुल फ्रेश तकरीबन एक्सपोर्टर लेते हैं फ्रेश। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तरह की मछलियाँ बेची जा रही हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बेची जाती है? यहाँ सबसे ज़्यादा किंग फिश बिकती है, जो क्वांटिटी में आती है, किंग फिश और ग्रुपर जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आती है और क्वांटिटी में बिकती है। ये अब्दुल जलील साहब, ये बताइएगा कि पूरे कराची में यहाँ से मछली भेजी जाती है, तो कौन सी मछली ऐसी है जो आवाम में ज़्यादा पसंद की जाती है? यहाँ पर मतलब कि दोतर मछली है, हीरा मछली है, सुरमाई है, और सारी दूसरी मछली भी होती है, मतलब कि सारी वो पसंद करते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, ये सितंबर का महीना चल रहा है, तो क्या ये महीना मछली खाने के लिए बेहतरीन होता है? हाँ सही है, यही महीना सही है, सितंबर का, अक्टूबर का, इसमें खा सकते हैं। ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा चलती है, मतलब कि बाकी बाहर भी एक्सपोर्ट होती है, मतलब कि
सुरमाई होती है, दोथर होता है, हीरा होता है, ये सारी मछली बाहर एक्सपोर्ट होती है, पापलेट वगैरह सारी एक्सपोर्ट होती हैं बाहर। अच्छा, आजकल जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, क्या आपको लग रहा है कि मछली की डिमांड वैसी ही रही है जैसे पहले होती? नहीं, पहले से माशाल्लाह बेहतर है, मतलब कि हर मछली की डिमांड बढ़ गई है, मतलब कि बहुत बेहतर हो गई पहले से। बात करते हैं मुदस्सिर साहब से, जो कंपनी के लिए फ़िशरी से माल उठाते हैं, और जानते हैं कि उनके क्या ख़यालात हैं फ़िशरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो सूरत हाल आजकल बनी हुई है, जिस तरह मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, कहा जा रहा है फ़िशरी की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब हुई है, तो आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल सूरत हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे माल शार्ट होने की वजह से रेट काफ़ी ऊपर चले गए हैं, जिसकी वजह से मछली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो चीज़ पहले 200 रुपये किलो थी, अब वही चीज़ 400 रुपये किलो जा रही है। अच्छा, आप कंपनी के लिए माल उठाते हैं तो कंपनी में तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी और जो चार्जेस लग जाते हैं उसके बाद वो थोड़ी सी और एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि लोकल मार्केट से ज़्यादा खरीदी जाती है मछली या फिर कंपनी से खरीदी जाती है? कंपनी की तो ज़्यादातर क्वांटिटी में माल ख़रीदा जाता है। अब जिस तरह दिन ब दिन डॉलर नीचे आ रहा है, उस तरीके से मार्केट बहुत आउट जा रही है, क्योंकि इधर लॉन्च वाले ख़र्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्च का ख़र्चा तकरीबन महीने के राउंड पे 60-65 लाख रुपए है। और जहाँ तक देखा जाए तो डॉलर भी दिन ब दिन नीचे आ रही है, तो ये मार्केट जो है ना नुकसान की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो हो रही है। तो नाज़रीन, मछली की बात तो हमने कर ली, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में झींगा भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तान अहमद साहब, जो कि झींगे के ऑक्शनर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस हद तक पाकिस्तानी अवाम में झींगा पसंद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि मछली की हालत तो हमने देख ली, झींगे की क्या सूरत हाल? झींगा ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है, और जो एक्सपोर्ट से जो एक क्वालिटी अलग निकलती है वो लोकल में बिकती है, क्योंकि उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट में, तो लोकल के लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए एक्सपोर्ट से अलावा जो क्वालिटी है वो यहाँ लोकल में होती है, और लोग बहुत पसंद से खाते हैं। शादियों में भी जाता है और होटलिंग में भी तकरीबन यही इस्तेमाल हो रहा है। सुल्तान साहब ये बताइएगा कि जो लोकल बिक रहा है और जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसमें कितना डिफरेंस है? इसमें तकरीबन को 250-300 रुपये का फ़र्क होता है। जी हाँ, वो अगर 1500 है तो यहाँ लोकल वाला 1200 रुपये होता है, बड़ी साइज़ का, जिसमें टेम्पूरा वगैरह बनता है जो। तो झींगे की भी कुछ किस्में होती हैं? 3-4 किस्में होती हैं, जिसमें टाइगर प्रॉन्स है, वाइट प्रॉन्स है, ब्राउन है, पिंक है, इस तरीके से चार किस्में हैं ये बड़ी साइज़ वाले झींगे की। अच्छा, तो जो लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है वो कौन सी किस्म है? इन सारी क्वालिटी का माल लोकल में बिकता है, लेकिन उसमें एक ग्रेड जिसकी खाल में चमक होती है उसका बाहर रेट ज़्यादा है। गोश्त दोनों का ताज़ा होता है, लेकिन जिसकी खाल ज़रा नरम पड़े वो लोकल में बिकता है, और जिसकी खाल जो है चमक वाली है, शाइनिंग है उसमें, और गोश्त मजबूत हुआ है, तो वो एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, फिशरी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदहाली का शिकार हुआ है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो आप इस बारे में क्या कहें? इसकी भी वजह है ना कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ और गवर्नमेंट की अदम तवज्जो, या बिज़नेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो टोटल प्राइवेट बिजनेस है, लोग अपने आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, इसकी बदहाली की वजह ये है। तो अभी तक यूरोपियन यूनियन से पाबंदी क्यों नहीं हटवाई? यहाँ हटी है, सिर्फ 2 कंपनी से हटी है। यहाँ पे माशाल्लाह 30-35 कंपनियाँ हैं, तो सिर्फ 2 से हटी है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। अगर ये टोटल से हट जाए यूरोपीय यूनियन की, तो ये हम जो बीच में कमीशन देते दुबई वालों को या चाइना वालों को, वो इस पे हमारे माल पे चढ़ जाए, तो इसका ज़्यादा रेट हो जाए, रेट बढ़े तो यहाँ लोग खुशहाल हों। अच्छा, फिश फार्मिंग और प्रॉन फार्मिंग पे कोई काम हो रहा है क्या? हुआ है, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से वो भी बर्बाद हो गया भाई। फार्मिंग यहाँ पाकिस्तान में कामयाब नहीं है इतनी ज़्यादा। तो आप इस सब का कसूरवार किसे समझते हैं? गवर्नमेंट की तवज्जो ना होना, और ऐसे लोगों को ले आके बिठा देना जो इस फील्ड से नहीं होते, उनकी समझ में ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वजह से होता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको फिशरी के एक्सपोर्टर्स के मसले मसाइल से आगाह किया, माही गिरों के क्या मसले मसाइल हैं उनके बारे में बताया, फ़िश कौन सी ज़्यादा आवाम में मकबूल है, झींगा कौन सा आवाम में ज़्यादा मकबूल है, इन सारी बातों से हमने आपको आगाह किया। और बाकी सेक्टर्स की तरह पाकिस्तान का फिशरी सेक्टर भी तबाही के दहाने पर है। अगर हुकूमत वक्त ने इस पर तवज्जो ना दी तो ये और ज़्यादा बर्बादी की तरफ जा सकता है, इसीलिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर।
MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔